ईश्वर से अनुमति व आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। भाई डावरिया जी, डायरेक्टर श्री विजय भाई डावरिया जी, एडवाइजर डॉक्टर ए.के. गौर सर, प्रिंसिपल मिसेस शुभ्रा श्रीवास्तव मैम, सभी सुपरवाइजर्स एवं सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी संस्था के संस्थापक, निष्ठावान, कर्मयोगी श्री रमणीक सर का तथा विद्या के सशक्त आधार स्तंभ डायरेक्टर श्री विजय सर का जन्मदिन बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संगीत की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन हाँ, संगीत मन के भाव को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। तो एक प्यारा सा गीत प्रस्तुत करने आ रहे हैं जसवंत सर और गायक सुन।
को सुरमय कर दिया है। संस्था के संस्थापक महोदय के व्यक्तित्व को एक वीडियो के माध्यम से देखते हुए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। रमणीक भाई नु कल, आज और कल। जन्मना जायते शीघ्रम संस्कारात बीज उच्चते। मानस जन्मथी नहीं पण पोताना कर्म द्वारा महान बने छे। आवा कर्मनिष्ठ અને નિષ્ઠાવાન કુટુંબમાં ગોહિલવાડના પંખીના માળા જેવા નાનકડા એવા ગામ ઢસામાં पिता दयाजी भाई तथा माता पार्वती देवी पुत्र तारीख 27 मार्च 1961 रोज जन्मदेह धारण कर्यो हतो। रमणीक भाई परिवारना 8 संतानों में 7मा संतान हता। घरनी आर्थिक स्थिति सामान्य हती। माता पिता अभण गरीब અને મજૂરી કામ કરતા હતા, પણ પોતાના સંતાન પુત્ર પ્રત્યે ખૂબ જ લાગણી, પ્રેમ અને શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ ધરાવતા હતા। બાળપણમાં રમત ગમતમાં ખૂબ જ મહત્વ ધરાવતા હતા। માતા પિતા પ્રત્યે અનન્ય આત્મીય શ્રદ્ધા અને ઘરના સભ્યોને હંમેશા મદદરૂપ થવાની ભાવના ધરાવતા હતા। અભ્યાસકાળ પાયાનું પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શિક્ષણ ઢસા ગામમાં જ પ્રાપ્ત કર્યું હતું। ન્યૂ એસએસસી 1978માં 67% સાથે પાસ કર્યું હતું। આગળ અભ્યાસ કરી મિકેનિકલ એન્જિનિયર બનવાની તીવ્ર તમન્ના હતી, પરંતુ ડોનેશન અને સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ ન હોવાને કારણે તેઓ આગળ અભ્યાસ કરી શક્યા નહીં। બાહોશ અને નિડર યુવાની યુવા અવસ્થામાં નિડર અને બાહોશ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા પોતે ધારેલા કાર્યમાં સફળતા ન મળે ત્યાં સુધી તે ઝંઝાવાતોની સામે ઝઝૂમતા અને અન્ય કરતા પોતે કઈ રીતે શ્રેષ્ઠ બને તે હંમેશા ઈચ્છતા। આવા ઉમદા સ્વભાવવાળા રમણીક ભાઈ વતનથી વિદાય થઈ મોટા ભાઈના સહકારથી ડાયમંડ નગરી સુરતમાં આવી 1 વર્ષ સુધી તેમણે રત્ન કલાકાર તરીકે કામ કર્યું। ત્યારબાદ મોટા ભાઈનો કાવેરીનો બિઝનેસ હોવાથી 1 વર્ષ સુધી નાનામાં નાનું ગણાતું એવું કંડક્ટરનું કાર્ય 10 રૂપિયાના વેતનથી શરૂ કર્યું। આ ઉપરાંત 2 વર્ષ સુધી તેમણે ડ્રાઇવિંગનું કાર્ય કર્યું અને સંઘર્ષોને ઝીલતા ઝીલતા 2 વર્ષ સુધી મહેતાજી તરીકેનું કાર્ય કર્યું અને 5 વર્ષ સુધીમાં તેમણે આ બિઝનેસનું સમગ્ર માર્ગદર્શન અને રજે રજની માહિતી શીખી લીધી હતી। સંઘર્ષમય પરિસ્થિતિ વચ્ચે શાહી ઠાઠ માઠથી શ્રીમતી મંજુલાબેન નાગજીભાઈ ઝાલાવાડિયા સાથે લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયા। જિંદગીને ભાર માની નથી ને નિરાધાર માની નથી, ધૂળ ખંખેરી ધપતા જતા માર્ગમાં હારને ક્યારે હાર માની નથી। આવા ઉમદા વિચાર સાથે ઉદ્યમેન હિ સિદ્ધ્યંતિ કાર્યાણીન મનોરથ નહીં સુપ્તસ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશંતિ મુખે મૃગા। Try and try till you succeed। એ સૂત્રને ચરિતાર્થ અને સાકારિત કરવા માટે રાત દિવસ કુટુંબ
અને અન્યની પરવા કર્યા વિના તેઓ ઓફિસના નાના મોટા દરેક કાર્યમાં મગ્ન થઈ અને સવારે 5 થી રાત્રિના 11 વાગ્યા સુધી સતત કાર્ય કરતા હતા. ઈસવીસન 1990 ભાઈઓથી અલગ થઈ ધંધાની હરીફાઈનો સામનો કર્યો. તેમણે પોતાનો ચાવીનો સ્વતંત્ર બિઝનેસ ખોડિયાર ટ્રાવેલ્સના નામથી શરૂ કર્યો અને તેમાં ખૂબ જ મહેનત કરી અને ખૂબ જ પ્રગતિ કરી. बहुत से लोग अपने दुखों के गीत गाते हैं, हो होली या दिवाली सदा मातम मनाते हैं, पर दुनिया तो उसकी रागिनी पर झूमती है जो जलती चिता पर बैठकर वीणा बजाते हैं. આ સમયગાળા દરમિયાન પોતે ઘર, સમાજ, કુટુંબ પ્રત્યે કાળજી રાખતા ન હતા, પરંતુ તેમના ધર્મપત્ની શ્રીમતી મંજુલાબેન સહનશીલતાની મૂર્તિ સમાન તેમને ઉત્સાહ અને સાંત્વના આપતા. મૌતની તાકાત શી મારી શકે, જિંદગી તારો ઇશારો જોઈએ, જેટલા ઊંચે જવું હોય માનવી તેટલા ઉન્નત વિચારો જોઈએ. આ સુવર્ણ સમય દરમિયાન માનવ્યના માનવંતા મસીહા એવા પરમ પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રીજી આઠવલેના વિચારોથી પોતે ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા અને આ દિવ્ય અને દૈવી વિચારે તેમનું હૃદય પરિવર્તન કરી નાખ્યું. આવા ઉમદા વિચારોથી પ્રભાવિત થઈ અને એમણે આ ટ્રાવેલિંગના બિઝનેસમાં પોતાના બાળકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ ન દેખાતા નવા વ્યવસાયનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો. માટે તેમણે નાના પાયા પર રિયલ એસ્ટેટનો વ્યવસાય કર્યો. આ અરસામાં પોતાનો નાનો પુત્ર જે શાળામાં અભ્યાસ કરતો હતો ત્યાં જવાનું થયું અને ત્યાંની વ્યવસ્થા અને મેનેજમેન્ટ જોયું તો તેમના મનમાં નવા વિચારોનું ઉદ્ભાવન થયું કે મારે પણ આવી એક નામાંકિત શાળાની સ્થાપના કરવી છે. અને વર્ષ 2004ના વર્ષમાં ટ્રાવેલ્સના વ્યવસાયને તિલાંજલિ આપી અને શાળા બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો. અત્રે જે જગ્યા જે ભૂમિ પર ભવ્ય રીતે આપણે બિરાજમાન છીએ તે જગ્યા જોવા માટે આવેલ રમણીકભાઈએ અહીં સરસ્વતીના પ્રિય પ્રતીક સમાન મોરને વિહરતા જોઈને બીજા દિવસે કાંઈ પણ વિચાર કર્યા વિના જમીન ખરીદી અને શાળા નિર્માણ કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો. 19 માર્ચ 2006 થી કોઈ પણ માર્ગદર્શનની અપેક્ષા વગર અને કોઈ પણ દાન કે ડોનેશન લીધા વગર માત્ર 650 વિદ્યાર્થીઓથી આ શાળાની શરૂઆત કરી. અને આજે આપણે જોઈએ છીએ કે શાળાના દરેક કર્મચારીઓના તાકાત અને સંનિષ્ઠ પ્રયત્નો થકી આજે આ શાળા પોતાના મૂળ વિચારો નવો ડોનેશનને વળગી રહીને શહેરના પાદરનું ઘટાદાર મહાવૃક્ષ બની ચૂકી, જેની ડાળીઓ ઉપરથી બોર્ડની એક્ઝામ આપીને બહાર જતા બાળ પુષ્પો જ્ઞાન રસથી ભરપૂર હોય, જેનો આસ્વાદ સમાજ અને દેશને કરાવી રહ્યા છે. અને દર વર્ષે નવા આવતા બાળ મજૂરો આગળના વિદ્યાર્થીઓનું સ્થાન લેવા માટે તલપાપડ હોય છે. આવા પ્રતિષ્ઠ વિદ્યાલયોથી નાના છોડમાંથી મહાવટ વૃક્ષ બનાવવા પાછળ રમણીકભાઈને જો કોઈનો સાથ અને વિશ્વાસ મળ્યો હોય તો એ છે પરમ પૂજ્ય પાંડુરંગ શાસ્ત્રીના વિચારો. ધર્મપત્ની મંજુલાબેન, તેમના સુપુત્ર વિજય, રવિ અને સુપુત્રી સોનલ તેમજ સમગ્ર વશિષ્ઠ વિદ્યાલય પરિવારને રમણીકભાઈ પોતાના આ વિશાળ પરિવારને હૃદય ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે. અને આજના ભૌતિકવાદી ભોગવાદી સમાજમાંથી અને સમયની વ્યસ્તતાને લીધે લુપ્ત થતી જતી બાબતો રમણીકભાઈના ઘરમાં વિકસે છે અને તે છે દરરોજ સાંજે પરિવારના દરેક સભ્યોની સાથે ભોજન કરવું.
અને ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ઋષિઓના રાહ પ્રમાણે સાંજે સાયં પ્રાર્થનામાં દરેક સભ્યોની સાથે પ્રાર્થનામાં બેસો અને ઈશ્વરની આરાધના કરો. દરેક નાના સભ્યનું મોટા સભ્યને વંદન, પ્રણામ, નમસ્કાર કરો અને પરિવારના દરેક સભ્યો સાથે અડધો કલાક બેસવું અને આ છે રમણીકભાઈના સંસ્કાર, સદ વિચારોનું ભાથું. રમણીકભાઈની પોતાના બાળકો પાસે એટલી જ અપેક્ષા છે કે તેમનું પોતાનું જીવન તેજસ્વી વિચારો સાથે જોડાયેલું રહે, નીતિ મૂલ્યો પ્રમાણે જીવન જીવે, દુર્ગુણોથી દૂર રહે અને રમણીકભાઈના ધ્યેયને આગળ લઈ જાય એટલી જ અપેક્ષા છે. આવા ઉમદા ચારિત્ર્યવાળા રમણીકભાઈનો જીવન મંત્ર એ છે કે તેઓ જ્યાં સુધી દેહને ટકાવી રાખે ત્યાં સુધી પોતાનું કામ જાતે જ કરવું. દુનિયામાં શ્રેષ્ઠ જીવન જીવીને આ દુનિયા છોડીને છેલ્લી ઘડીએ ભગવાન પાસે જતી વખતે કોઈ પણ મોહ વગર હસતા પુષ્પોની જેમ હસતા મુખે આનંદથી આ દુનિયાને અલવિદા કરવી એ છે. આવા ઉમદા નીતિ મૂલ્યો ધરાવતા રમણીકભાઈને તેમના 50મા प्रार्थये महे भव शतायु ईश्वरः सदा युवां च रक्षतु सुदिनं 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 युवयोः भवतु मंगलम जन्मदिनम. हम सभी ईश्वर के चरणों में आप दोनों की शतायु होने की और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं. कार्य छोटा हो या बड़ा, पूरी निष्ठा और लगन से करने की सीख हम आपसे ही पाते हैं सर. कहा जाता है कि श्री गणेश का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होता है वह विद्या प्राप्ति का अधिकारी बनता है. श्री गणेश के साथ माता सरस्वती का आशीर्वाद जिसे प्राप्त होता है वह विद्यादाता अर्थात गुरु का सम्मान प्राप्त करता है. और श्री गणेश माता सरस्वती के साथ समस्त देवों का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो जाए वह श्री वशिष्ठ विद्यालय जैसी महान संस्था के संस्थापक की तरह उभर कर सामने आता है. और यहाँ यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी सर कि समस्त देवताओं का आशीर्वाद आपके कर्तव्यनिष्ठता के कारण आपको हमेशा प्राप्त है और हमेशा प्राप्त होता रहेगा. शाश्वत शुभेच्छाएं सभी देना चाहते हैं और शाश्वत शुभेच्छाएं जो है वह आशीर्वाद बनकर जीवन में फलदायी होती है. शुभेच्छाओं को देने के लिए यहाँ सभी आना चाहते हैं किंतु समयाभाव के कारण यह संभव नहीं है. अतः कुछ शिक्षक मित्र हमारे बीच उपस्थित है. सर्वप्रथम सर्वेश सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी. थैंक यू मैम. Happy birthday to a visionary founder who has given wings to countless dreams and shaped the lives of so many. Your dedication and hard work have made this school a beacon of hope and a place of learning for all. May this special day bring you joy and happiness. And may you continue to inspire and touch the lives of many more. Wishing you a wonderful birthday filled with love and blessings. आप हमारे विद्यालय के सृजनकर्ता हैं. आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सभी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं. आप ऐसे ही हम सबके जीवन के सदैव प्रेरणा के स्रोत बने रहें. आपने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से विद्यालय को एक सफल और प्रगतिशील स्थान का दर्जा दिया है. हम आपको इस शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाओं के साथ आपका अभिनंदन करते हैं. धन्यवाद सर. मंच पर उपस्थित सभी श्रद्धेय जनों को मेरा स्वागतम. आदरणीय श्री रमणीक भाई डाबरिया जी, विजय भाई डाबरिया जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. आज का ये जो विशेष दिन है यह आप दोनों के लिए अनंत खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और आनंद लेकर आए. आज के दिन मुझे पिछले साल जो विजय भाई ने एक बात कही थी वो याद आ रही है. पिछले साल आपने अपने जन्मदिन पर कहा था कि मुझे पता ही है. हम सब जानते हैं कि जो विजय भाई हैं वो कितने स्पष्ट वक्ता हैं, बड़ी ही सादगी से अपनी बात कह देते हैं. उनके बात करने के तरीके में एक रोचकता है जो चेहरे पर हंसी ला देती है.
पिछली बार इन्होंने कहा था कि मुझे पता है आज मेरा बर्थडे है तो सब अच्छा ही अच्छा कहने वाले हैं, सब मेरी तारीफ करेंगे, सब मेरी प्रशंसा करेंगे। तो सर हम जैसा करते हैं वैसा ही सुनने को मिलता है, अच्छा किया है तो अच्छा ही सुनने को मिलेगा। ये मैं नहीं कह रही या हम नहीं कह रहे, हम ही तारीफ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक वाक्य आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी 2-1 दिन पहले ही बोर्ड ड्यूटी के दौरान, हमारे स्कूल में बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं, तो बोर्ड ड्यूटी के दौरान दूसरे स्कूल के टीचर भी अपने स्कूल में आते हैं, तो मैं उनके साथ बोर्ड ड्यूटी में थी। तो एक टीचर थी जो विंडो के पास खड़ी थी और बाहर का दृश्य बड़ी ही तन्मयता के साथ निहार रही थी। और वो दृश्य क्या था, अपनी लिटिल बस्टिस की जो बिल्डिंग है ना, वहाँ पर खेलते हुए जो बच्चे हैं उनको देख रही थी और चेहरे पर एक अजीब सी प्रसन्नता थी उनके। और वो देखते हुए वो बोली कि मैम मैं यहाँ 3 दिन से आ रही हूँ और मैं रोज विंडो के पास खड़ी होकर ये दृश्य देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये जो बच्चे हैं ना कैसे चहक रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है, इन बच्चों को कोई रोक टोक नहीं है, कितनी फ्रीडम है यहाँ पर। और यही नहीं तो छोटे बच्चे हैं जो साथ में जो बड़े बच्चे खेल रहे हैं ना, वो भी कितने सरल और सहज भाव से इधर उधर जा रहे हैं। वातावरण यहाँ का कितना अच्छा है और जो टीचर हैं वो भी कितने सहज हैं, कितनी सौम्यता है उनके चेहरे पर। यहाँ का जो वातावरण है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाली है, बिल्डिंग ऑफकोर्स बहुत अच्छी है, स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ के टीचर भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, एक मुझे यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, बहुत अच्छा फील होता है। तो मैंने उनसे कहा कि वास्तव में यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है, यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण, हरियाली, बिल्डिंग, बच्चे, टीचर सब बहुत अच्छा है, मनोरम है, सुरम्य है, रमणीय है। और इसका कारण एक ही है कि इस संस्था का जिसने निर्माण किया है, जिसने इसकी नींव रखी है, उनका नाम है श्री रमणीक भाई डावरिया जी। उनका नाम ही रमणीक है, रमणीक उन्होंने काम किया है, रमणीक मन से किया है, अथक परिश्रम से उन्होंने इस संस्था को खड़ा किया है। जब भाव सच्चे हो, काम अच्छा हो, मन में लगन हो, तो पॉजिटिव वाइब्स तो आएंगे ही आएंगे। तो सर ऐसा बाहर कहा जाता है, हम तो आपको जानते हैं तो लगता होगा कि तारीफ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, बाहर जो नहीं जानते हैं उनको भी यहाँ पर आकर एक अच्छी वाइब्स मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं बस अंत में से इतना ही कहना चाहूँगी कि आपका जीवन रमणीक रहे, जीवन में मधुरता बनी रहे, खुशियाँ लेकर रवि रोज आपके आंगन में आए। शुभ इच्छा, शुभ संकल्पों पर आप सदा विजय ही पाए। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू। Good afternoon to everyone. To see a dream is one thing, but to fulfill it is a very hard one. And that sir, with his all efforts, he has made it through, and we can see that. The smile behind this we have, we can see only this because of the big institute today. 18 years has been completed, but still his efforts are same as at the time of its beginning. उनके चेहरे से हमेशा से, मैंने भी नियर बाय 10 years हो रहे, हमेशा एक हल्के सी मुस्कान, विजय सर हो, रवि सर हो या रमणीक सर हो, रमणीक सर तो कई बार फुल्ली एकदम बच्चों की तरह हंस भी देते हैं, we see that, but struggle behind that smile nobody knows. But today we can say that all the efforts that has been made till now and that has full-fledged tree we are bearing the fruits is because of just Ramanik sir, Vijay sir and all the dignitaries who have worked behind this. And because of that, we are happily living over here. On this auspicious moment, I would like to say on behalf of higher secondary part, very very happy birthday sir and many many happy returns of the day. God bless you and please you bless us so that we fulfill much more. Thank you. ज्ञान और
सौंदर्य से दैदीप्यमान वशिष्ठ विद्यालय की इस पावन भूमि को नमन करता हूँ, जो अपने ज्ञान के शीतल जल से इस विद्यालय को सींच रहे हैं, ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को नमन करता हूँ। युवा कर्मठ विद्यालय के डायरेक्टर श्री विजय भाई डावरिया जी को नमन करता हूँ, जिनके सानिध्य में ये विद्यालय उत्तर और सीढ़ियाँ छू रहा है। ऐसे एडवाइजर प्रधानाचार्य मैम, निरीक्षिका मैम को नमन करता हूँ, और नमन करते हुए नमन करता हूँ उस युग पुरुष को जिनके कारण आज हमारे जीवन में ये दिन आया है कि कायनात में आज फिर बहार छाई है, कायनात में आज फिर बहार आई है, खुशियां अपने साथ बेशुमार लाई है। आप यूं ही हंसते रहोगे जिंदगी में, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से आपकी जिंदगी सजाई है। कि कायनात में आज फिर बहार आई है, खुशियां अपने साथ बेशुमार लाई है। आप यूं ही हंसते रहोगे जिंदगी में, क्योंकि उसने खुद अपने हाथों से आपकी जिंदगी सजाई है। कि आज के दिन का किस तरह शुक्रिया अदा करूं, मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं उसका, कि जिसने ये दिन बनाया और उसने आपको हम सबके लिए यहाँ भेजा। वो देख तो आज भी रहा होगा, बस एक मेरी दुआ सुन ले आपके लिए, मेरी दुआ सुन ले आपकी लंबी उम्र के लिए। सर परिश्रमी और उनका जो साहस है वो देखने से पता चलता है कि वो कितने परिश्रमी हैं, कितने साहसी हैं। कि सर आपके परिश्रम से यहाँ फूल महकते हैं, आपके परिश्रम से यहाँ फूल महकते हैं, आपके परिश्रम से यहाँ पक्षी चहकते हैं, आपके परिश्रम से यहाँ भंवरे गुनगुनाते हैं, और आपके परिश्रम से यहाँ चेहरे मुस्कुराते हैं। किसी को इंजीनियर बनना है सर, किसी को डॉक्टर बनना है, यहाँ बच्चे दूर दूर से आते हैं, ख्वाब देखते हैं। आपके परिश्रम के कारण यहाँ आंखों में ख्वाब पलते हैं, आपके परिश्रम के कारण यहाँ आंखों में ख्वाब पलते हैं। आपके परिश्रम के कारण हजारों घरों में चिराग जलते हैं। आपके परिश्रम का बस कर्ज चुकाना है, आपके हर सपने को सच कर दिखाना है, आपके हर सपने को सच कर दिखाना है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। रमणीक सर ने जिस तरह से अभी आपने देखा वीडियो में किस तरह से पूजा पाठ कर रहे थे, विजय सर रवि सर उनके चरण स्पर्श कर रहे थे, तो मैंने कविता लिखी थी बहुत समय पहले, और रमणीक सर ने किस तरह से उनको शिक्षा दी, व्यवसाय की शिक्षा दी, पारिवारिक शिक्षा दी। सर शब्द रमणीक सर के ही विजय सर को किस तरह से उन्होंने सिखाया था उस पर थी कि पापा ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, पापा ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, कि राह कठिन होगी फिर भी चलते रहना ये समझाया था। पापा ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, राह कठिन होगी फिर भी चलते रहना यह सिखाया था। सदा सदैव मार्ग पर चलना, सदा सदमार्ग पर चलना, ठोकरें खाना पर हाथ न मलना, माना ये जीवन एक संघर्ष है फिर भी सूरज सा चमकना, फूलों सा महकना। माना यह जीवन एक संघर्ष है फिर भी फूलों सा महकना, तारों सा चमकना। तुम ये न समझना कि यहाँ कौन किसके लायक है, कमजोर कोई नहीं, यहाँ हर कोई नायक है। परिस्थितियों को कमजोर मत समझना, कि तुम ये न समझना कि यहाँ कौन किसके लायक है, कमजोर कोई नहीं, यहाँ हर कोई नायक है। तुम हर रिश्ते को बड़े स्नेह से निभाना, तुम हर रिश्ते को बड़े स्नेह से निभाना, क्योंकि हर रिश्ता यहाँ सम्मान के लायक है। और जो बचपन में उन्होंने बड़ी डिजाइन नहीं रखी, जो करना है खुशी से करना, और कहा था न कोई तुम जीवन में कुछ बनो, जो बनो वो अपने आप बनना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि न कोई तुम नदी न कोई समुद्र बनाना, न कोई नदी न कोई समुद्र बनाना, न कोई मीनार न कोई ताज बनाना, बना सको तो कुछ ऐसा बनाना कि सभी को फक्र हो जिस पर, ऐसा अपने हिस्से का हिंदुस्तान बनाना, ऐसा अपने हिस्से का हिंदुस्तान बनाना। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अति सुंदर, बहुत ही अच्छा। ये बात तो सच है कि सफलता एक रात में नहीं मिलती, किंतु रातों के अथक प्रयास से ही सफलता प्राप्त होती है। यहाँ हम इस बात को समझते भी है और जानते भी है। शुभकामनाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एडवाइजर सर डॉक्टर ए.के. गौर सर से अनुरोध है कि वह पुष्पगुच्छ देकर संस्था संस्थापक श्री रमणीक भाई जी को बधाइयाँ दें। प्रिंसिपल मैम शुभ्रा श्रीवास्तव मैम से अनुरोध है कि वो विजय सर को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें, तो बधाइयाँ दें। सभी शिक्षक
शिक्षकों की ओर से, सभी विद्यालय के समस्त स्टाफ की ओर से सुपरवाइजर्स से अनुरोध है कि वह डायरेक्टर श्री और संस्था संस्थापक को पुष्पगुच्छ देकर बधाइयाँ दे व सम्मानित करें। वशिष्ठ एक बहुत ही बड़ा परिवार है और इस बड़े परिवार में बड़ों का सम्मान करने की परंपरा के लिए सभी उत्साहित हैं, लेकिन संभव नहीं है कि हर एक आपके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले सके, किंतु कुछ शिक्षक समुदाय यहाँ पर आपको सम्मानित करने के लिए, आपको बधाई देने के लिए आए हुए हैं, जो सभी शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आने वाला हर दिन, हर पल, हर समय आपके लिए आनंददायक हो, यह कामना हम सभी आपके लिए करते हैं। मंगलमय जीवन की कामनाओं के साथ हम सभी आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। श्री रमणीक सर व श्री विजय सर से अनुरोध है कि वह केक कटिंग कर कार्यक्रम में मिठास भर दें। सभी टीचरों से अनुरोध है कि कृपया वह आगे आए और इस विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होकर आनंद अनुभव करें। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ramanik sir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear Ramanik sir. Happy long life to you. Happy long life to you.
you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ramesh. Happy birthday. जीविते शरद शतम, जीविते शरद शतम। सर, रमणीक सर, विजय सर, आपको जन्मदिन की अनेकों बधाई। Dear Shri Ramnik Bhai, Shri Vijay Bhai, staff members, it is always a very proud privilege for us to celebrate your birthday. जब भी आपका बर्थडे आता है, काफ़ी समय से हम लोग उस तैयारी में रहते हैं, बहुत अंदर से खुशी होती है, अंदर से बहुत उत्साह होता है। और जितने भी शिक्षक मित्र हैं, उन्होंने आकर के जो भी सब आपके बारे में बताया, वीडियो देखा, वो सब से बड़ी प्रेरणा मिलती है। और इससे यही मिलता है कि जो भी लाइफ में चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हमको बड़े स्माइल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं जब इस विद्यालय में आया था, तब मेरे लिए इस विद्यालय में सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ की स्ट्रेंथ थी कि कम बच्चे हैं, और धीरे धीरे अब हम उस मुकाम पे आ गए हैं कि जहाँ की अभी 100% ऑक्यूपेंसी सभी रूम्स की है, फुल रूम्स हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टाइम हमने जब ये ऐसी बर्थडे पार्टी रखी थी, तो डोसा हमने रखे थे, और उस डोसा का बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए रहा कि लास्ट टाइम वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो हमने सोचा कि इस बार उसको भी हम रिपीट करेंगे, और जहाँ जहाँ जो कमी उसमें रह गई थी उनको पूरा करेंगे। और आई एम श्योर कि दिस टाइम दिस डोसा पार्टी इज गोइंग टू बी ए सक्सेसफुल पार्टी। और नेक्स्ट time definitely you will say that we like to have another round of that. Once again on this auspicious occasion, I wish you all the best to you. Wish you very happy days. Wish you very healthy and happy life to both of you. Thank you. God bless you. थैंक यू सर। चुनौतियों को भी चुनौतियों देना, ये तो हम आपसे ही सीखते हैं सर। कम बोलकर भी अपने शब्दों का मोहदार फैलाना पहचान है जिनकी। ऐसे है हमारे डायरेक्टर श्री विजय सर। सर, आपसे अनुरोध है कि इस अवसर पर अपने वक्तव्य से हमें लाभान्वित करें। थैंक यू इतने सारे गिफ्ट्स और ये सब पार्टी का आयोजन करने के लिए। सबसे पहले तो चेयरमैन सर और मेरे पापा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी कर सकता था, वो उन्हीं की बदौलत है। क्योंकि वो बचपन से मुझे ये कहते, तू नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। और वो जानते थे कि मैं ऐसा बोलूँगा कोई करेगा, मुझे करने नहीं देगा। इसलिए उनका बेनिफिट उन्होंने बहुत उठाया है। और दूसरी, ये जो अभी वीडियो देखा, उसमें हमारी पुरानी यादें बहुत ताज़ा हुई। इसमें वशिष्ठ विद्यालय इतना बड़ा हुआ, हम सब भी इतने बड़े हुए साथ में। हम सब बड़े हुए, उसमें हमारी खुद की मेहनत है। पर वशिष्ठ विद्यालय जो इतना बड़ा हुआ है, उन सब में आपकी मेहनत है। इसलिए आज के दिन मैं भगवान से आपने जितनी भी दुआ हमारे लिए मांगी है, उतनी आपके लिए मांग रहा हूँ। क्योंकि वो भगवान आपको वो सब दुआ देगा तो ऑटोमेटिकली खुशी, आनंद और हंसी वो तो मुझे मिलने ही वाली है। क्योंकि वो सब आपको मिलेगा तो आप वशिष्ठ विद्यालय के लिए और बेहतर काम कर पाएंगे, और वो नाम मुझे मिलेगा। मैं अभी 2 दिन पहले सबसे बात हो रही थी, तो इस बार बहुत सारे एडमिशन के लिए कॉल्स आ रहे हैं, तो पहचान ढूंढ के एडमिशन करो। तो मैंने सबसे 2 दिन पहले यही कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी बात कुछ भी है इसमें तो ये है, लोग हमारे आज हमारी पहचान ढूंढ रहे हैं कि कहीं से भी चेयरमैन सर की पहचान मिल जाए, एडवाइजर सर की मिल जाए, प्रिंसिपल की मिल जाए, डायरेक्टर की मिल जाए। वो सब कुछ आपकी बदौलत है और आपकी मेहनत है। तो थैंक यू। और आज के दिन भगवान से मैं ये मांगता हूँ कि आप सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, और कुछ भी आपके पास आने वाला हो वो पहले हमारे पास आ जाए। थैंक यू। मीठी बातें, चेहरे पर मुस्कान और अपनी अच्छाइयों का, अपने प्रगति का श्रेय भी दूसरों को देना, यह होती है विद्वत जनों की पहचान।
हर शब्द जिनका आशीर्वाद के रूप में हमें प्राप्त हो, ऐसे हमारे संस्था के संस्थापक श्री रमणीक सर से अनुरोध है कि वो हमें आशीर्वचन प्रदान करें। मुझे तो आज सुबह मालूम हुआ कि मेरा बर्थडे है। बर्थडे विशेष का फोन आने लगा, तब मेरे को लगा कि आज 27 मार्च है, क्योंकि मेरे को मेरी बर्थडे की याद नहीं रहती। उसका मीनिंग ये है, उसका कारण ये है कि मैं हर खुशी वशिष्ठ विद्यालय की बर्थडे में दे देता हूँ, और वही डेट मेरे को याद है। वशिष्ठ विद्यालय की कौन सी बर्थडे है वो मेरे को कभी भी पूछो तो याद रहती है। आज मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशन आप लोगों ने नहीं की है, वशिष्ठ विद्यालय की बर्थडे का सेलिब्रेशन आपने किया है। उसकी वजह से हम सब हैं। मैं तो आज हूँ, कल नहीं रहूंगा, हर एक इंसान का वही रास्ता है, लेकिन वशिष्ठ विद्यालय हर हमेशा रहेगी। उसमें जो भी लोग अच्छा काम करके जाएंगे, उसके लिए काम करके जाएंगे, वो हमेशा याद रहेगा। इसलिए आप सबका जन्मदिन मेरे को लगता है आज। मेरे को तो हर लोग विशेष करते हैं, लेकिन आप सब खुश होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पेरेंट्स और हमारे स्टूडेंट भी खुश होते हैं। वो आपकी वजह से। हमने तो एक इंट्रोडक्शन कर दिया कि मेरे मन में विचार आया, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन धीरे 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 आप सब जुड़ते गए, आप सब काम करते गए, उससे नाम बनता गया। स्कूल का नाम बनाने में आप सबका सहयोग है। मेरी इतनी प्रार्थना है आप सब खुश रहे, आप इतना अच्छा काम करें कि वशिष्ठ विद्यालय का नाम बना रहे, उसके पांव में आप सब हैं। आप सबका नाम जुड़ा रहता है। यहाँ हर लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन हर एक का लिस्ट में नाम है। हर एक ने थोड़ा थोड़ा या बहुत बहुत काम किया है। उसकी वजह से आज हमारे स्टूडेंट का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, उसकी वजह से हम खुश हैं, और उसकी वजह से हमारे बच्चे भी खुश हैं। इसलिए आप सब, आपके बच्चे, आपके परिवार सब खुश रहे, इसकी वजह से एक ही है कि आप सबकी मेहनत है। लेकिन मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि मैं देखता हूँ सब बच्चे खुश क्यों हैं। आप सब अपने बच्चे समझकर इस संस्था में काम कर रहे हैं, और मेरा आनंद उसी में है कि आप ये समझो कि यहाँ आप लोगों का सिर्फ बच्चे नहीं आते हैं, जो स्टूडेंट आते हैं वो सब हमारे बच्चे हैं, ऐसा मैं भी आज भी समझता हूँ। इसीलिए वशिष्ठ विद्यालय का बर्थडे हमें याद है। हर एक बच्चे में मैं वशिष्ठ विद्यालय देखता हूँ, हर एक बच्चे को यहाँ आते हुए देखता हूँ, तो मेरे को वशिष्ठ विद्यालय याद आता है। हम हमारे बच्चे को अच्छी प्रेरणा देते हैं, हमारे बच्चे को हम अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, अच्छे सीख देते हैं, और अच्छी तरह से पढ़ाकर एग्जाम में भेजते हैं। हम खुद हमारे बच्चे, क्योंकि हमारे बच्चे, खुद के बच्चे अच्छे ग्रेड, अच्छे मार्क्स और अच्छे बने, यही हमारे सबकी माँ बाप की इच्छा रहती है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट के माँ बाप
पहले अब है, बाद में वशिष्ठ विद्यालय है। इसीलिए हम सबकी वशिष्ठ विद्यालय है वो माँ है। वशिष्ठ विद्यालय हमारी माँ, माँ से हम सब सीखते हैं। जन्म लेते टाइम और मरते दम तक माँ शब्द बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसी से हम सब सीखा है, उसी से हम आगे बढ़े हैं, उसी से हमने प्रेरणा मिली है। हमारी माँ पढ़ी लिखी हो न हो, लेकिन उससे हम बड़े हुए हैं, उसकी वजह से हम आगे बढ़े। इसीलिए हमेशा माँ को याद रखो। माँ को याद रखेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें आशीर्वाद मिलता जाएगा। इसलिए आप सबने इतना कष्ट उठा के, आपका जाने का टाइम 2 बजे का होता है, लेकिन आप इधर बैठे हैं। मैंने पहले विजय भाई को पूछ लिया, मैडम को भी पूछ लिया, तो बोले आज हम यहाँ स्टे बैक करने वाले हैं। क्यों? मेरे को लगता है ये बर्थडे की वजह से आपने सब एडजस्ट कर लिया होगा। आप अपना काम भी करेंगे, एंजॉय करेंगे, खाना खाएंगे, लेकिन उसकी वजह से आप सबको भी बहुत बहुत बर्थडे की, मेरी बर्थडे की, वशिष्ठ विद्यालय की बर्थडे की, विजय भाई की बर्थडे की ओर से, क्योंकि ये सब मार्च में आता है। तीनों बर्थडे मिला के आप सबकी बर्थडे इसके साथ मिल जाती है। इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत बेस्ट विशेष और हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। दूसरी बात सर, नेक्स्ट ईयर आप ये 27 को जो बर्थडे करते हो 30 पूरा करना था, कि मुझे भी 3-4 केक काटने का मौका मिले। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और सच्चाई यही है हमारा वास्तविक जन्मदिन होगा। सर, हम ये भी एक प्रण आपसे करते हैं कि आपके सारे सपनों को पूर्ण करने का हम प्रयास करेंगे। वशिष्ठ विद्यालय की प्रगति में निरंतर प्रयास करते रहेंगे। समस्त वशिष्ठ परिवार की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए आपको करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे साथ इस विशेष दिन को मनाया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में इतना ही कहना चाहूँगी, नम्रता मान देती है, नम्रता मान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, योग्यता स्थान देती है, और ये तीनों गुण आपके चरित्र में विद्यमान है सर। इसलिए प्रकृति भी आपको सम्मान देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पुनः जन्मदिन की अनेकों बधाइयाँ। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम के समापन की अनुमति चाहती हूँ। जिस किसी का भोजन बाकी हो, भोजन का लाभ उठाए और साथ ही केक सभी के लिए है, केक खाकर जाइए।